सो गाइस ये वाला जो वीडियो है वो मैंने स्पेशली शुरू किया है जेई एग्जाम के लिए फॉर जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम लाइक आरआरबी ओके एंड एसएससी जेई यू नो गाइस सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज से हम गाइस यही इसी तरीके के जो क्वेश्चन है जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर वाले हैं जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप और मैच द फॉलोइंग्स टाइप इसी प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स फॉर बी एंड बी टेक स्टूडेंट्स फॉर ITI students for exam basically for exam like railway exams RRB JEE SSC JEE. So guys, let's start. So we will discuss some question and answer. So let's start. So okay guys, so now let's solve these questions. Okay, so here is the question. यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है. So this is match the following type. Okay, so match each term in column 1 to its closest meaning in column 2. So guys, this is column 1. ये column 1 में दी गई चीजें हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक from 1st to 10 and this is column 2nd. And now we have to find out the correct answer. We have to match the correct answer. Okay, with the option, with these options. So guys, अब हमको match करना है. So let's start. So first one is electron. So देखिए ये बहुत ही basic है. Okay, this is actually 10th or 9th level questions. So electron. So in this also answer is given. तो पहले हम देखेंगे what is the correct match for electron. So there is positive charge, same number of electrons, electrons in first shell, released electrons, neutral charge, electrons in outermost shell, quota field in outermost shell, number of electrons in nucleus, negative charge. So guys, this will be correct. ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो आवेश है उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और जो होता है 1.6 10 to the power -19 कूलाम और वो नेगेटिव होता है. And that is the magnitude of charge. And then second is what is the correct match for neutron. So guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं first का I है. The correct answer is first is I and second neutron. So see here neutron का यहाँ पर जो आप देख सकते हैं guys E जो दिया है neutral charge. Second का आंसर आप देख सकते हैं this is neutron जो होता है वो neutral charge होता है. You can see. Okay, we will discuss in this slide. You can see guys ये जो है एक atomic structure दिया गया है. This is the atomic structure. Okay, किसी भी एक atom का जहां पर आप देख सकते हैं this is called the nucleus of atom. यह जो है ये nucleus है किसी भी atom का जहां पर जो basically क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर. Okay, और ये जो हैं These are called orbits जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. These are the electrical orbits or shell. Okay, so here reside the free electrons, fixed electrons. Okay, you see these are electrons. ये सारे के सारे जो dotted हैं ये सारे के सारे electrons हैं. And this is called outermost electron. Outermost orbit. और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है that will be called valence electron. You see this is called valence electron. So guys, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, इक्वल होते हैं और ये न्यूक्लियस जो है ये देखिए ये न्यूक्लियस कहलाता है. So we will see. आप देख सकते हैं इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं guys there are some properties. कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. I will put this slide okay with this video. So you can easily understand. आप समझ सकते हैं. और unit of charge क्या होता है you can see. Unit of charge is the coulomb and denoted by C, capital C. The symbol of electric charge is Q and the charge of one electron is given 1.6 into 10 to the power -19. So 1 coulomb of charge is equal to 1 upon 1.6 into 10 to the power 19 or these are the number of electrons 6.25 into 10 to the power 18 electrons.
सो गाइस एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 into 10 to the power 18 electrons. Okay, now come to the question. So second one is answer आप देख सकते हैं second का E है. Okay, the neutron correct match is neutral charge. Neutron जो होता है वो neutral charge होता है, मतलब ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, वो न्यूट्रल चार्ज होता है. देन थर्ड कंपाउंड. What is compound? And correct match for compound is K. You see, combined elements are called compounds. आप देख सकते हैं आंसर 3K. So these are compound which are combined elements. जो बंधे हुए एलिमेंट्स होते हैं, जो कंबाइंड एलिमेंट्स होते हैं, उनको कंपाउंड कहा जाता है. देन फोर्थ वन इज न्यूट्रल. सो फोर्थ का आंसर आप देख सकते हैं बी है गाइस. फोर्थ बी. व्हाट इज बी? न्यूट्रल. अगेन न्यूट्रल चार्ज के बारे में है. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ये देखिए न्यूट्रल कब होता है? जब कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रल कब होता है? जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तब वो जो एटम होता है वो न्यूट्रल पाया जाएगा, वो न्यूट्रल होता है. एंड देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. यू सी फिफ्थ का जो है F इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वी ऑलरेडी डिस्कस गाइस. जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है, जो बाहरी ऑर्बिट होता है, ये वाला जो कहलाता है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है. इसी को वैलेंस शेल कहा जाता है, या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. एंड दिस विल बी कॉल्ड, और यही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी आउटर मोस्ट कक्षा में या ऑर्बिट में रहता है. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिफ्थ का आंसर आप देख सकते हैं F. ओके, दिस फिफ्थ F. यू सी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. देन सिक्स एंड देन नंबर 6 आप देख सकते हैं गाइस. कॉलम 1 में जो 6 वाला पॉइंट है वो है एटॉमिक नंबर. सो नाउ सी, okay, let's see what is the correct match for atomic number, and that is L. Option is L. 6 का L है. आप देख सकते हैं L का मतलब है number of protons in nucleus. So guys, in this picture आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोटॉन होता है और वही एटॉमिक नंबर होता है. जो भी प्रोटॉन की संख्या होगी वही एटॉमिक नंबर कहलाता है. You already know. So atomic number 6 is the correct match. 6 का L है, number of protons in nucleus. Then free electrons. 7th point आप देखिए, 7th point free electrons, and the correct match is D. released electrons. जो free हो जाते हैं, free electrons means the released electrons, जो इस कक्षा से बाहर चले जाते हैं. ये वाला जैसे इलेक्ट्रॉन है गाइज, जो रिलीज होगा अगर ये यहाँ से चला जाएगा तो ये फ्री हुआ कहलाएगा. दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रीड, क्योंकि ये फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इनको तोड़ना पड़ता है, इनको ब्रेक डाउन करना पड़ता है कुछ एनर्जी से. सो गाइज यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है. एंड देन सी के शेल. व्हाट इज के शेल? 8th आप देख सकते हैं 8 का J है, और ये है कोटा ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो K इज मैच्ड विद दिस. K का 8th का J है, दैट इज कोटा ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. देन 9th iron. What is iron? And iron is matched with M, charged atom. So charged atom is iron. So basically guys, एक एटम जो होता है ये इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, और ये न्यूट्रल होता है. दिस इज न्यूट्रल. Okay, because the proton, if the proton numbers are equal, exactly equal to electrons number, or if number of electrons are equal to number of protons, so the atom will be exactly neutral. Okay, but if there is any deficit of electron, okay, so that will be called a charged ion. That will be called charged atom. And then 10th point आप देख सकते हैं inert. What is inert? And this is related to quota filled in outermost shell. Okay, so that is also आपने सुना होगा inert gases. So guys, अगर ये कोटा जो है filled in outermost shell, अगर ये complete है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो कोटा है in this valence, the valence electrons in this outermost shell are complete. अगर इनका कोटा complete है तो guys ये किसी से react नहीं करेंगे.
Okay, these electron will not react to anybody's. Okay, so that will be called you see inert, और इसीलिए inert gases होती हैं. ओके जैसे नियॉन, ऑर्गन, ये सब इसीलिए inert gases कहलाती हैं. So guys, now we will move towards our next slide. तो देखिए यहां पर भी जो क्वेश्चन है 1.10 में दिया गया है, मैच ईच डिवाइस इन कॉलम 1 टू इट्स क्लोजेस्ट प्रिंसिपल इन कॉलम 2. सो कॉलम 1 में ये दिया गया है सबसे पहले बैटरी, जनरेटर, टीवी कैमरा ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, phonograph needle, and in the second column you can see electromagnetic induction, B is free electrons, ionized gases, chemical reaction, thermal energy, photoelectricity, mechanical motion. So guys सबसे पहले देखिए बैटरी किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इज देयर. फर्स्ट का जो है वो है डी, केमिकल रिएक्शन होता है. यू ऑलरेडी नो किसी भी बैटरी या सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जिससे वो उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है. ओके सो आप जानते हैं यहाँ पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड बैटरी. और ये डीसी वोल्टेज को स्टोर करके रखता है. ओके इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर डीसी वोल्टेज. फिर देखिएगा सेकेंड जनरेटर. सो जनरेटर में क्या होता है, यू सी दिस इज द आंसर 2A. तो जनरेटर का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वो फेराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ओके सो या प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हेनेवर द रोटर कंडक्टर इज रोटेटेड ओके बाय एक्सटर्नल प्राइम मूवर इन ए जनरेटर between uniform magnetic field. So according to Faraday's electromagnetic induction law there will be induced EMF inside conductor. उस कंडक्टर के अंदर प्रिंसिपल के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार एक EMF जनरेट होता है. So 2 is matched with A. Then third TV camera tube and that is related to photoelectricity. Okay, photoelectricity, this is the correct match. Then fourth vacuum tube is matched with free electrons. आप यहाँ पर देख सकते हैं guys, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा. देखिए ये तो हो चुका है. आयोनाइज्ड गैसेस, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा. केमिकल रिएक्शन नहीं होगा वैक्यूम ट्यूब में. थर्मल एनर्जी नहीं होगी. फोटो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी. मैकेनिकल मोशन नहीं होगा. तो वैक्यूम ट्यूब में जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चलते हैं. एंड देन फोनोग्राफ नीडल फिफ्थ आप देख सकते हैं फिफ्थ का जी है, मैकेनिकल मोशन होता है फोनोग्राफ नीडल में. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. तो आप यहां पर पूछ सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया, आयोनाइज्ड गैसेस. सो गाइस यहां पर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स करेक्ट आंसर है. ओके नाउ सी द नेक्स्ट वन. ओके नाउ सी यहां पर आप देख सकते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग है गाइस. ओके नाउ यू कैन सी द प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, कोटा, एल शेल, एलिमेंट, अनस्टेबल शेल, कॉपर, नेगेटिव आयन एंड मैटर. एंड इन कॉलम 2 you can see negative charge, quota of 8 electrons, excited state, maximum number of electrons. तो इस तरीके से हमको कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है. तो देखिए सबसे पहला जो है प्रोटॉन. तो प्रोटॉन आप देख सकते हैं पहले का F है आंसर. प्रोटॉन इज करेक्टली मैच्ड विद पॉजिटिव चार्ज. ये देखिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है इसलिए फर्स्ट का जो करेक्ट मैच है ये 1 to F. ओके फर्स्ट का जो आंसर है वो F. देन सेकेंड मॉलिक्यूल. सो सेकेंड आंसर इज K. यू कैन सी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. सो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल सेकेंड का K है, smallest particle having same characteristics, that is called molecule. Then third is quota और ये quota इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है. सो आप देख सकते हैं थर्ड का D. थर्ड is matched with D, maximum number of electrons in shell, that is quota. मतलब इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ओके a shell can occupy the maximum number of electrons, that will be called its quota.
देन फोर्थ वन इज एल शेल. ओके, यू सी फोर्थ का जो है वो ऑप्शन है, ये होता है कोटा ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स को एल शेल कहा जाता है और कोटा ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन को के शेल कहा जाता है. आप देख सकते हैं गाइस, हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए के शेल, ये 8th वाला जो पॉइंट था, के शेल क्या था, 8 का जे था. यू सी दिस इज द जे. कोटा ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड के शेल. ओके, बट कोटा ऑफ एल शेल, कोटा ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ का आप ये देखिए बी, कोटा ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एल शेल. देन देखिए गाइस, फिफ्थ नंबर एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? सो एलिमेंट इज मैच्ड विथ एम, ऑल एटम्स द सेम. एलिमेंट यहां से मैच किया है, ऑल एटम्स आर द सेम. देन अनस्टेबल, 6 पॉइंट आप देखिए, 6 का सी है गाइस, एक्साइटेड स्टेट. अनस्टेबल स्टेट मींस एक्साइटेड स्टेट. देन सी, सेवेंथ शेल, शेल मतलब ऑर्बिट. सेवेंथ का देखिए जे है ऑर्बिट, ये देखिए सेवेंथ का जे है, शेल का मतलब ऑर्बिट होता है. 8th देखिए कॉपर. व्हाट इज कॉपर? करेक्ट मैच, 8 का एच. What is H? This is H. Atomic number is 29. कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है, आप देख सकते हैं. देन नेगेटिव आयन, 9th का जो है वो ई आंसर है. एटम नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिव आयन मीन्स एटम, दैट इज एटम, दैट इज एन एटम which is negatively charged. And then 10th, matter. So matter is related to mass and volume. Mass and volume. So guys, आप देख सकते हैं, these are very basic questions. और आप ये वाली स्लाइड को देख सकते हैं जहां पर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं. सो यू कैन जस्ट पॉज दिस स्लाइड, योर वीडियो, ओके, एंड देन यू कैन रीड द प्रॉपर्टीज. दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम. ओके, आई हैव ऑलरेडी एडेड ओवर हियर. Fix the peak of an atom, structure of atom, so you can see from here. Okay, so now let's see the next match the following. So guys, यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं. ये जो सिंबल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो अब और यहाँ पर जो कॉलम 2 है गाइज, यहाँ पर इनका नाम दिया गया है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए. सो देखिए, सबसे पहला जो है ये ट्रांसफॉर्मर की कॉइल नजर आ रही है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी. सो व्हाट इज दिस? लेकिन यहाँ पर आयरन कोर नहीं है, नो आयरन कोर, नो पैरेलल लाइंस आर देयर. इस तरीके से अगर ये पैरेलल लाइंस होती यहाँ पर, तो ये एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मर कॉइल, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती, बट हियर कोर इज नॉट देयर. सो देखते हैं ऑप्शन में क्या है. ओके, सो वोल्टमीटर, रजिस्टर, शेल, अमीटर, बैटरी, रियोस्टेट, आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर, ओके, वेरिएबल रजिस्टर, ग्राउंड, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर. देखिए दोनों ऑप्शन है यहाँ पर, आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर और एयर कोर ट्रांसफॉर्मर. सो ये वाला ऑप्शन आपको चुनना है, करेक्ट मैच. सो गाइज, यहाँ पर एयर कोर ट्रांसफॉर्मर इज द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट आप आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट का जे है. ओके, फर्स्ट का जे, बिकॉज हियर 2 पैरेलल लाइंस आर नॉट देयर. 2 पैरेलल लाइंस जो आयरन कोर को रिप्रेजेंट करती हैं वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए ये आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर ना होके ये जो सिंबल है वो है गाइज एयर कोर ट्रांसफॉर्मर. सो फर्स्ट जे. देन सेकेंड, यू नो दिस सिंबल वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं, ये बैटरी है. सेकेंड का ई, दूसरे का ई, बैटरी. Then third is voltmeter, you already know. Third A, this is voltmeter. Fourth one is capacitor, you already know, capacitor, this one K. Fourth K, see here. Then this is iron core transformer. Iron core transformer. So correct match 5, fifth G. Then 6, this is, ये क्या है देखिए, आप बताइए, ग्राउंड नजर आ रहा है क्या आपको? ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली द ग्राउंड, 6I, उसी आंसर. और ये अमीटर है, 7th आप देख सकते हैं गाइस, द 7th वन इज अमीटर. देन 8th, व्हाट इज 8th? यू सी दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये देखिए, ये अगर रेजिस्टेंस इस तरीके से है, कोई भी इसमें तीर का निशान नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है गाइस. दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेजिस्टेंस. बट इफ देयर इज एन एरोहेड मार्क, इस तरीके का अगर दिया गया है,
सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। सी कहां पर है ऑप्शन में, आप देखेंगे 8th का वेरिएबल रजिस्टर। ओके, केवल सिंगल रजिस्टर नहीं बल्कि वेरिएबल रजिस्टर, ये फिक्स रजिस्टर है गाइस। एंड 9th वन देखिए, 9th ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस। तो अगर एरो हेड इस तरीके से मार्क्ड है तो इसका मतलब गाइस ये क्या चीज है, ये है रियोस्टेट। सी दिस इज कॉल्ड रियोस्टेट। ओके, सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस। एंड 10th वन इज, आप देख सकते हैं यहां पर सेल। ओके, ये देखिए दोनों में फर्क क्या है, दिस इज बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड बैटरी। तो इसीलिए 2 का आंसर था क्या, सेकेंड का आंसर था ई बैटरी, बट दिस इज ए सिंगल सेल। ये वाला जो है ये सिंगल सेल है, इसीलिए ये जो करेक्ट आंसर है ये होगा सी, 10th का सी। सो देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस गाइस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, गुड बाय गाइस।